परमेश्वर यीशु मसीह के अद्भुत नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। We greet you in the precious name of the Lord Jesus Christ. He is the living God. वो जीवित परमेश्वर है। He is the God who has risen from the dead. वो ही मृत्यु से जी उठे हैं। तो लास्ट वीक ईस्टर के लिए सभी लोग ईस्टर मनाए। Have you celebrated Easter? क्या बोले आप? कौन सा परमेश्वर है वो? What did we say? कौन सा परमेश्वर है? Living God. मौत से जी उठे। The one of मतलब आज भी वो जिंदा है। That means तो हम we कौन also से is परमेश्वर alive. की आराधना करते हैं? We are worshipping whom? The living God. जीवित परमेश्वर। जिंदा खुदा। Hallelujah. Hallelujah. He knows everything of yours. वो सब कुछ जानते हैं आपके बारे में। वो राजाओं का राजा है। He is the King of Kings. वो प्रभुओं का प्रभु है। He is the Lord of Lords. वो सिंहासन पर विराजमान है। He sits in his heavenly throne. Hallelujah. Hallelujah. So whenever I'm going to say something about the Lord, I'm going to describe. You're going to say Hallelujah. मैं कुछ जो भी बोलूंगी परमेश्वर के बारे में आपको हालेलुया बोलना है। वो पवित्र परमेश्वर है। He is the holy God. क्या बोलना आपको? Hallelujah. वो जिंदा खुदा है। He is the living God. Hallelujah. He is the gracious God. वो अनुग्रह वाला Hallelujah. परमेश्वर है। He is the merciful God. वो दया करने वाला Hallelujah. परमेश्वर है। He is the start and the end. वो शुरुआत और अंत है। Hallelujah. He is a never changing God. वो कभी बदलने नहीं वाला Hallelujah. परमेश्वर You can keep describing him in so many words. है। अब हम उनका वर्णन करते रह सकते You see any good characteristics and he is that. हैं। कोई एक अच्छा गुण देखो और परमेश्वर You है। can find all sort of relationship in him. सब संबंध हम परमेश्वर में देख सकते हैं। You want the love of a husband? आपको एक पति का It प्यार is Jesus. वो यीशु है। You want the love of a friend? आपको दोस्त का It is प्यार Jesus. वो यीशु है। You want a parental love? आपको माता पिता का It is Jesus. प्यार चाहिए वो यीशु है। You want the love of brother and sister? आपको भाई बहन का It is प्यार चाहिए Jesus. वो यीशु है। You want a shoulder? आपको एक सहायता चाहिए It is Jesus. वो यीशु है। He is the only one God. वो एक ही परमेश्वर है। In the books of Lamentations, it says, लैमेंटेशंस में कहता है His compassion उनका जो दया never fails, वो कभी खत्म and नहीं it's new every morning. और हर एक दिन उनका अनुग्रह नया है। Great is His faithfulness. उनका जो Hallelujah. उनकी दया कैसा है? उनकी दया कभी समाप्त नहीं होती है। His mercies are unending और वो हर सुबह and every उनकी day दया कैसा है? नया है। grace is new every morning. देखो जब भी कोई रिलेशनशिप में Whenever you are in a कोई relationship, भी तरीके का रिलेशन होने दो, whatever relation you are in, एकदम नई नई में whether it हर चीज अच्छा रहता है। at the start it is always प्यार अच्छा रहता है, the love is दया good. ज्यादा रहता है, The देखभाल mercy- ज्यादा करते हैं, We take care of each other हाँ more. कि नहीं? Yes or no? लेकिन जैसा दिन जाते रहता है, As the days pass by, हर चीज कम हो जाता है। everything keeps on reducing. एक माता जब एक बच्चे को हाथ में पहली बार लेती है, When the mom takes the kid for the first time, प्यार पूरा भरपूर प्यार वो बच्चे को देती है। there would be so much love. लेकिन जैसा दिन घटते जाता है, As the days pass by, प्यार कम होते जाता है। the love keeps on लेकिन decreasing. यहाँ पर वचन कहता है But the word of God says, कि परमेश्वर का दया the love of God, कभी बोलेंगे मुंह खोलकर the कभी mercy of God समाप्त नहीं होती is unending. और वो हर दिन कैसा है? And how it is, हर दिन नया है। it is new every day. हर दिन जैसा एक बच्चे नया बच्चे को जैसे हाथ में लेते हैं, Every day how we वो माता का take जितना भी पूरा प्यार है, how the mom loves, वैसे ही same यीशु thing. मसीह का जो दया है आपके ऊपर, The mercy of God on you, वो छूना नहीं होता है। it's not an old वो one. हर दिन सुबह वो कैसा है? How it is Come every on. morning, वो हर दिन कैसा है? how it is every नया है। morning. It's new. हर दिन नया है। It's new every morning. As if it is a new relation. It is just like a new relationship. हस्बैंड एंड वाइफ जब मैरिज होता है, When husband and wife get married, स्टार्टिंग में हस्बैंड वाइफ का या वाइफ हस्बैंड का बहुत देखभाल करते हैं, आगे नहीं। in the beginning they take care of Yes each or other no? so well. लेकिन जैसा दिन जाते रहता है, How the days pass by, आप सभी को पता है क्या होता है? we know what Right? happens. But here
But And God अपना is a परमेश्वर never changing God. वो कभी बदलने And नहीं every वाला morning और हर एक दिन His love, His compassion, His grace, His mercy, everything is new. उनका जो प्यार है, उनका जो अनुग्रह है, उनका Hallelujah. दया है, वो नया है। So we are worshipping a God who is never changing. और हम वैसे परमेश्वर को आराधना करते हैं जो बदलता नहीं है। और हमें ये याद रखना है And we have to कि remember वही this. एक खुदा है. He is the one, The and only only God. one living God. एक ही जीवित परमेश्वर। And we worship the living God. और हम जीवित परमेश्वर का आराधना करते तो आपको गर्व होता है कि नहीं? हैं। Are you proud of it or not? We have to be. Why? We are worshipping the living God. We have to Hallelujah. be proud of it because we are worshiping the living God. सबके हाथ में गीत का एक शीट दिया है. We all have paper. सभी लोग मुंह खोलकर, क्योंकि Open your mouth. जैसे सिस्टर ने ऑलरेडी बोली कि ये जो नेक्स्ट 45 मिनट्स या 1 आवर जो भी है, The next 45 ये minutes. पूरा का पूरा किसका समय है? Whose time it is? परमेश्वर यीशु मसीह. It is God's time. वो विश्वास योग्य परमेश्वर है. He is faithful. और हमें भी कैसा रहना है? And how we have to be? वैसे ही रहना है ना? We have to be Yes the or same no? way. Yes. याद रखो कि वही खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है. उस चालना से हम सब आए, की गीत गाए, सबका तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो. ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो. नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है. रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का असल से यही सिलसिला है. उस पर ईमान करो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो. ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो
यहाँ वहाँ नहीं Do देखेंगे, not look here and there. अपने आप को परमेश्वर के पास अर्पित करेंगे, Just surrender yourself to God now. क्योंकि वही एक जिंदा खुदा है Because He is a living और God वो हर चीज को जानते हैं। and He knows everything. आप माता के गर्भ में बनने से पहले वो आपको जानते हैं। Even before you were formed in your mother's womb, He knew you. उन्होंने आपको नाम से पुकारे हैं, And He has called you by name. उन्होंने आपको उनके हाथों में रचा कर रखे हैं। And He has formed you and engraved you on the वो palm of आपके His हर hand. चीज को जानते हैं। He knows everything about you. आपका उठना, बैठना, चलना, फिरना, हर चीज को वो जानते हैं। You're sitting down, you're raising up, you're moving, everything Jesus is aware of. कल, आज और आने वाला कल कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. और हमें गर्व है कि हम उसकी आराधना करते And हैं। it's to take pride that we worship Him. अभी का समय हम पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में अर्पित Now करेंगे। this is the time we surrender to God. सारे वचन को हम उनके हाथ में अर्पित करेंगे। All the word we would give it to Him. आयु में सारे लोगों को हम उनके हाथ में अर्पित All करेंगे। the people we surrender it to Him. गीत को हम उनके हाथ में अर्पित The करेंगे। worship we give it to Him. अपना पूरा मन, हृदय, पूरा और हमारा प्राण, हर कुछ हम उनके हाथ में अर्पित Our करेंगे। mind, soul, body, everything we are surrendering to worship Him. हम घटेंगे और प्रभु बढ़ना है। We will decrease and God will has to increase. ये पूरी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। And all these prayers we ask in the name of Jesus, हमारे जीवित अच्छे पिता। our living God. Amen. 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 हमें परमेश्वर बहुत अच्छे हैं। Our God is a good God. Yes or no? Yes. The word says he's a good God. वचन कहता है कि वो अच्छा परमेश्वर He's है। a good God, वो अच्छा so परमेश्वर he है। will do good. तो वो Yes अच्छा or no? करेगा। Yes. Hallelujah. Hallelujah. In the books of Deuteronomy, व्यवस्थी विवरण में chapter 7, verse 9. let's take the book of Deuteronomy chapter 7 verse 9. Let's read व्यवस्थी विवरण। इसलिए जान रखो कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। ये विश्वासियों को ईश्वर है जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं और उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। Hallelujah. Know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Hallelujah. Hallelujah. Know therefore that the Lord your God is God. ये जानो कि आपका परमेश्वर परमेश्वर है। अपना जो परमेश्वर यहोवा है, वो कौन है? Our Lord our वो God, परमेश्वर है। He is the God. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि नो देयरफॉर, इसका मतलब हम अभी तक जाने नहीं। This means that we do not know because the word says know therefore. वही बोल रहा है ना वचन। That is what the word is saying. क्या बोल रहा है? पहला लेटर क्या बोल रहा है इनके लिए? What is the first word? इसलिए जान रखो कि इसलिए जान रखो जान रखो मतलब जानो, Know पहचानो। therefore that the Lord. तो व्हाट आर वी टू नो टुडे? क्या जानना है अपने को? वी हैव टू नो हमें जानना है कि दैट द लॉर्ड अपना Our यहोवा, God हमारा यहोवा इज गॉड। वो परमेश्वर है। ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। वो मनुष्य नहीं है। अपना परमेश्वर कौन है? परमेश्वर है। अपना परमेश्वर मनुष्य नहीं है। He is not a man. वाई? You? मनुष्य का क्या होता है? What happens मनुष्य with क्या होता है? man? What happens with man? बदलते रहते हैं ना। They keep on changing. आगे नहीं। Yes. आज कुछ है, Today, कल कुछ और है, tomorrow, अगला दिन कुछ और ही बन जाते हैं। and the next day they change totally. या फिर अभी 10 बजे कुछ है, 10 11 बजे कुछ है, 11 a.m. they are रात को different. कुछ और ही बन जाता है। And in the night they are अरे totally आगे नहीं। different. You will see. लेकिन वचन कहता है But the word says, कि अपना जो परमेश्वर है our God, वो परमेश्वर है। He is तो God. बोलने की जरूरत भी नहीं है। It is So not. we have to understand something here. इसमें कुछ समझने की बात है। वो परमेश्वर है, वो मनुष्य
He नहीं is है, not a man. He तो is वो God. कभी बदलने वाले नहीं है, क्योंकि And he मनुष्य doesn't क्या change. होता है, Because what happens in मनुष्य man? The man बदलते keeps on रहते हैं। changing. हालेलुया। Hallelujah. The God is introducing himself here. परमेश्वर अपने आप He is को a बताता है। faithful God. वो एक विश्वास योग्य देखो, हर परमेश्वर है। किसी को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं Whenever we तो introduce बोलते हैं someone, कि then what we उनका say, नाम ये है, this is their तो name. यहाँ पर अपना परमेश्वर कौन है, Who is परमेश्वर। your, our God is the और God. सेकंड बोलते हैं And कि secondly says, ये नौकरी करते हैं या ये वो है, जो भी है, then we talk about what their कुछ background इंट्रोडक्शन is. होता है कि नहीं एक सेंटेंस में। We introduce something. तो यहाँ पर परमेश्वर का ये इंट्रोडक्शन है, Here God's introduction. He is a faithful God. वो विश्वास योग्य परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर है वो, What type of बोलेंगे God? सभी लोग, विश्वास योग्य, विश्वास करने के योग्य, He is the God with, on whom you can have your a faith. God whom you can rely on, वो परमेश्वर जिस पे a आप भरोसा कर God सकते on हैं। whom you can bet on. वो Hallelujah. परमेश्वर आप शर्त रख सकते हैं। आंख बंद करके, कैसा, क्लोजिंग या right? एकदम लाइन। तो He is a faithful God. वो विश्वास योग्य भूलिए परमेश्वर। मत, He is a faithful God. Today we have to take this verse. अपने कोई आज ये He वचन is लेना, a faithful God. वो एक विश्वास योग्य, वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। विश्वास करने के योग्य। He is the God on whom you can place your trust. आप पूरा विश्वास उनके ऊपर रख सकते हैं। Keep your trust on Him fully. जब हम किसी के बारे में बोलते हैं Whenever we talk about someone, या फिर उनके साथ जो हमारा एक्सपीरियंस है, and when we talk about our experience, उससे हमें समझ में आ जाता we है understand something. कि उनके ऊपर हम कितना विश्वास कर सकते How हैं। much we can trust. हाँ कि नहीं? Yes or yes. जैसा कुछ एक्सपीरियंस होता है Whenever we have an या फिर अगला experience, कुछ सिचुएशन आता है उनके साथ, and there is a tough तो हम situation, माइंड में कैलकुलेशन करने लगते हैं। then we calculate in our mind. अरे वो है क्या, अच्छा, this person, पूरा बिंदास विश्वास करो। trust him वो fully. बोलते हैं तो करेंगे, We do that or not? लेकिन और किसी के साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होता And if we है have a bad experience with कि अगर someone, उनके बारे में कुछ बातचीत होता है and if someone talks तो about it, बोलेंगे then we अरे say, वो है क्या, "Arey, this is थोड़ा ध्यान that से, person. Be careful." हाँ कि नहीं? Yes or no? Yes. तो विश्वास The trust इज अ कमिटमेंट। कोई commitment है. आपने कुछ बोला When you say और आपने उसका पालन किया या आपने उसको फुलफिल किया, and whether you are तो fulfilled that, ऑटोमेटिकली क्या होता है, then what happens हम automatically? उनको विश्वास करने लग जाते हैं। We start trusting that तो person. यहाँ पर वचन ये कहता है The word says कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। He is a faithful God. टू 1000 generations, 1000 पीढ़ी के लिए. वो आप सिर्फ आपके लिए विश्वास योग्य नहीं है, He's not faithful only to you. आपके आने वाले आने वाले आने वाले आने वाले पीढ़ी तक। He's faithful to all the और generations. कितना पीढ़ी, All क्या the लिखा है वचन generations. में? 1000 generations. 1000 generations. So it's not only to you. ये सिर्फ आपके लिए नहीं So है. today आज you are going to take that covenant with him, आप वो वाचा लेने वाले हो परमेश्वर से. जो Which सिर्फ आपका जो प्रॉब्लम है उसका चाबी नहीं, it's not only key to your own problem, बल्कि but आपके आने वाले पीढ़ी तक all the upcoming generations. आप कितना भी जायदाद कमा के रखो, No matter how much we have आपका heard, एक जनरेशन 2 जनरेशन, हम कई बार सुने हैं, we have heard 7 पीढ़ी तक मेरे बच्चे बैठ कर खा सकते, मैंने उतना कमा के रखा। I have heard so much that for the next सुना 7 है कि नहीं? generations, my children डायलॉग है ये, बोलते हैं ना, can eat. हम तमिल में बोलते हैं, In Tamil we say, ये तलमुरेకి उकांत सापडला, क्या बोलते हैं, for 7 सात generations they पीढ़ी can, तक for 7 generations they don't बैठ कर खा don't सकते have हैं, to earn. मैंने उतना कमा कर रखा I है। have earned that much. लेकिन गर्व करो, But take pride on this. यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, But what God says, कितना जनरेशन, for how many generations? 1000 generations, 1000 generations. in that 1000 generations, ये जो 1000 पीढ़ी है, यदि 2 जनरेशन हो जाता है तो people will not know because your grace is not. Yes or no? लोग नहीं जानते अगर 2 जनरेशन खत्म हो गया तो 2-3 जनरेशन हो गया अगर 2-3 जनरेशन हो तो गया, बोलेंगे then we say, दादा तक सबको नाम याद रहता है, up to our grandfather we know the name. दादा के पिता कौन थे या दादा के दादा कौन थे किसी को मालूम नहीं We do रहता। not know the grandfather name of our grandfather.
लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का जो वाचा है But here, God's वाचा promise, the आज promise, सिर्फ आपके साथ नहीं, not only बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ी, the generation. कितना पीढ़ी बोलेंगे सभी How लोग many मुंह खोलकर? generations? कितना पीढ़ी? How many generations? Thousands. 1000 पीढ़ी तक For the next 1000 generations. परमेश्वर वो वाचा जो आपके साथ बांधे हैं, The promise what God has kept. परमेश्वर वो वाचा The promise 1000 पीढ़ी तक for the next 1000 उसको generations. फुलफिल करेंगे। He will fulfill. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. जब हम वो वाचा को, जब परमेश्वर के साथ वो वाचा बनाते हैं, When we have this covenant with God, हम कुछ डे, फॉर एग्जाम्पल टुडे आई एम आस्किंग गॉड, अगर मैं आज परमेश्वर से पूछूं, आई लव गॉड टुडे सो मच बहुत प्यार करता एंड आई एम हूँ मेकिंग अ कवनेंट विद हिम टुडे, और मैं एक वाचा करता हूँ आज, तो परमेश्वर ने मेरे साथ एक वाचा बना दी है कि आई प्रॉमिस यू, आई एम गोइंग टू मेक यू फ्लरिश, आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई यू, आई एम गोइंग टू ब्लेस यू एक्सीडिंगली व्हाटएवर। और परमेश्वर आपके साथ वाचा कर रहे हैं कि मैं आपको आशीष करूंगा, लेकिन- आपको बढ़ाऊंगा। लेकिन पर एक साल में after that 1 year, कुछ हो जाता है, something happens. आपका प्यार कम हो गया, Your love decreases. तो क्या परमेश्वर ने जो बोले वो भी कम हो जाएगा? Is what God promised decreases? ये क्वेश्चन है, It's the क्या वो भी question. कम हो जाएगा? Does that नहीं, decrease? क्यों नहीं? Why does it? वचन क्या कहता है? What the word of God says? वो कौन सा परमेश्वर What type है? of God he is? फेथफुल गॉड, विश्वास योग्य He परमेश्वर। is a faithful God. आज आपने वाचा बना दिए, You have made a covenant with Him, परमेश्वर ने आपको एक प्रॉमिस कर दिए, and God has promised you तो something. कल आप बदल जाएंगे, Tomorrow you might change, लेकिन वो तो कभी ना बदलने वाले but God परमेश्वर will है। not change. उन्होंने आपको प्रॉमिस तो कर दी है, He promised you. तो क्या करेंगे वो प्रॉमिस को? What would happen? निभाएंगे, He will fulfill His promise. उसको फुलफिल करेंगे ही करेंगे। He will fulfill His promise. हालेलुया। Hallelujah. We really don't know in this 1000 generations what is going to happen. We do not. हमें नहीं पता आने वाले 1000 पीढ़ी में क्या होगा। But today, आज if the Lord has made a covenant with you, अगर परमेश्वर ने आपके साथ वाचा trust किया, Him विश्वास because करें, He's a faithful God. क्योंकि विश्वास योग्य That परमेश्वर is है, going to go वो आगे जाने वाला है। 1000 generations. 1000 पीढ़ी, Hallelujah. Hallelujah. No matter what, कुछ भी हो, no matter what, कुछ भी हो, you may turn, आप बदल सकते हो, you may doubt Him, आप संदेह कर सकते हो, you may become weak, आप निर्बल बन सकते हो, but परंतु His promise उनका जो will वाचा है be fulfilled. वो पूरा होगा। Hallelujah. Hallelujah. 2000 generations of those who love Him and keep His commandments. तो अगर आज आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, If you love God today, परमेश्वर के सारे कमांडमेंट्स को फॉलो करते हैं, if you follow His commandments, और आपका परमेश्वर के साथ आज एक वाचा बनता है, and if there is a covenant between you and God और today, परमेश्वर ने आज आपको एक प्रॉमिस दे दिया, and God has given you a promise today, तो वो प्रॉमिस आपका कितना जनरेशन तक जाएगा? and that promise will go to how many बोलेंगे? generations? 1000 generations. 1000 generations. हालेलुया। Hallelujah. What a beautiful introduction of our Lord Jesus Christ. कितना एक अच्छा परमेश्वर, अपना परमेश्वर परमेश्वर है, our God is He's a not a God. human being. वो मनुष्य नहीं है He is a faithful God. और वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, And whatever covenant He has made with you, और जो भी वाचा आपके साथ किया it है is going to go to वो 1000 पीढ़ी, 1000 generations. 1000 पीढ़ी जाएगा। A very big promise, isn't it? ये एक बड़ा वाचा Yes है। or no? Yes. Are you ready to, take that promise today and manifest it in your life today? ये जो वाचा है Yes or no? आप लेने तैयार हो उसको और वो करने आपका के जिंदगी में प्रकटीकरण होना है या नहीं? लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? What you have to do? Surrender yourself. अर्पित करो, हमें क्या करना है? अर्पित करना है। Because क्यों पता है? whatever we are today, हम जो भी है आज, वो हम नहीं है, ये हम we are not that. अपने बलबूते में नहीं है, It's not by our own strength. हमारे बल पे नहीं है, It's not by our own strength. हमारे पढ़ाई से नहीं है, It's not by our own हमारा qualification. खानदान से जो भी अपना जो उससे नहीं है. It's not by our family. It is all because He has called you. ये सिर्फ इसलिए क्योंकि Hallelujah. परमेश्वर ने आपको चूज किया है। Yes or no? हाँ जी नहीं।
अभी हम एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे एक उदाहरण देखेंगे। कहीं पूरा शास्त्र में इतने सारे प्रॉमिसेस परमेश्वर ने किए और इतने सारे प्रॉमिसेस को फुलफिल किए। In the Bible, we can see God has fulfilled all the promises. अब पूरा जिंदगी में अगर हर किसी को बोलते जाएंगे तो आप बोलते रहेंगे। If you talk about His wonders, you will keep on talking in your life. But for us to understand today, हमें समझने के लिए let us just take one example. एक ही उदाहरण लेंगे। In the books of Joshua, जोशुआ की पुस्तक पर 1 एक को अधिकार verse 5. 5th वर्स रीड करेंगे। जोशुआ चैप्टर 1। आज सभी लोग जोशुआ की पुस्तक ले लेंगे। Let's take the book of Joshua, chapter 1. Let's read Joshua chapter 1 verses 5. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. हालेलुया। Hallelujah. Let's read in Hindi as well. तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेंगे। जैसे तू मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे उसी को छोड़ूंगा। हालेलुया। Hallelujah. We are talking about Joshua. हम यहोशुआ के बारे में देख रहे हैं। अब आप सभी लोग जोशुआ को पहचानते हैं कि कौन है? Do you know who Joshua is? जब अपने इस्राएल के लोग मिस्र देश में थे, The people of Israel were in captivity. वहाँ पर कैसे थे? How they were? गुलाम बनकर They were थे। enslaved. मोसेस Moses, उन लोगों को वहाँ से बाहर लेकर आने के लिए परमेश्वर ने मोसेस को चुने। God chose Moses to bring them out of their slavery. और जब उन्होंने मिस्र देश से इस्राएल के लोगों को बाहर लेकर आए, And from the foreign land, when he got them out, 40 साल उन्होंने उस यात्रा में बिताए। they were in that journey for कितना साल? 40 years. 40 साल। 40 years they were there in that journey. फिर बाद में परमेश्वर ने After that, मूसा के बाद after वो Moses, लीडरशिप जो है that leadership किसको दिए? was जोशुआ को transferred, दिए। was transferred to Joshua. परमेश्वर ने बोले, God said, जोशुआ Joshua, अभी तुम इन लोगों को these people कानान देश के अंदर लेकर जाने वाले should हो। be taken into the Canaan land by Hallelujah. Hallelujah. तो अभी सब लोग को पता है कि अभी जोशुआ का एक्चुअल वर्क प्रोफाइल क्या है, सबको समझ में आ Now गया। everyone understood what तो is जोशुआ का काम क्या था? what was the work of इस्राएल के लोगों को his duty. कानान देश के अंदर लेकर जाना है। Take the people of Israel into Canaan. जोशुआ के प्रीवियस जो बॉस मतलब प्रीवियस लीडर कौन थे? Who was the previous leader of Musa. Joshua? Moses. पहले मोसेस थे। First it was Moses. मोसेस के बाद And then after अभी मोसेस को रिटायरमेंट। now Moses. अभी नेक्स्ट लीडर किसको चुने? Now who is next? जोशुआ को चुने। Joshua. अभी जोशुआ के लिए बिल्कुल नया है, It was totally new for Joshua. हाँ कि नहीं? Yes or no? एकदम बिल्कुल नया जॉब प्रोफाइल है It's totally a new profile for him. कि जोशुआ डर गया होगा। Joshua was वो ये afraid. सोचेगा कि मैं कैसे करने वाला हूँ। He would be thinking, how can I do this? अरे मैं तो बहुत कंफर्टेबल था कि कैसे भी मूसा हमको लेके चले जाएंगे। I was in a comfortable position that anyway Musa will take us. मैंने कभी सोचा नहीं कि ये मेरे सिर पे आएगा। I have never imagined that this would come on my मैंने own. कभी सोचा नहीं कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा। I never thought that हाँ कि this नहीं? responsibility will be तो transferred. यहाँ पर Here, परमेश्वर God जोशुआ से बात करते हैं। is talking to Joshua. No one will be able to stand against you all the days of your life. तेरा पूरा जिंदगी में कोई भी तेरे विरोध खड़ा नहीं रह सकते. समझ के लेंगे इस वचन को। Try to understand this word. परमेश्वर आपको भी शायद कुछ ना कुछ नया जॉब हो या नया रिलेशन हो, कोई नया रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया होगा। Even God would have bestowed on you new job or a new responsibility. जब आपको एक नया रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, When God gives you a new responsibility, परमेश्वर आपको God, स्ट्रेंथ भी देते He हैं। gives the strength. बल भी देते हैं। He gives the strength to क्या बोल के बल दे रहे हैं? what He says. कोई भी तुम्हारे विरुद्ध खड़े नहीं रह सकते। Nobody can stand against you. आज के लिए नहीं, Not for today. ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। पूरा जिंदगी में. हालेलुया। Hallelujah.
तुम्हारा पूरा जिंदगी में कोई तुम्हारे विरुद्ध नहीं खड़े रह सकते। Nobody can stand up against you all the days of your life. तो जोशुआ को कितना स्ट्रेंथ मिला रहेगा So ना? what kind of strength Yes did or no? Joshua receive? उतना ही नहीं, Not only that, परमेश्वर यहाँ पर और एक विटनेस बता रहे हैं, he is saying one more thing. as I was with Moses, जैसे मैं मूसा के साथ था, so I will be with you. वैसे ही मैं तेरे साथ भी रहूंगा. क्योंकि जोशुआ ऑलरेडी मोसेस के साथ उनका जो दिन बिताए हैं, Because Joshua had spent a good amount of time with Moses. जोशुआ ने एक्सपीरियंस किया है He had experienced Moses. परमेश्वर That God, मूसा को Moses, कितना अद्भुत तरीके से उनको चला रहे थे। in what wonderful way God was leading Moses. तो अभी परमेश्वर जब जोशुआ से बात कर रहे हैं, And when God was talking to Joshua, उनको हिम्मत तो दे ही रहे, He was strengthening फिक्र him. मत करो। He was giving him तुम्हारे courage विरुद्ध तो कोई नहीं रह सकता है, that nobody is there to us. लेकिन फिर भी उसका मन शायद मानता नहीं होगा। But his heart was not तो इसके accepting. लिए परमेश्वर बोल रहे हैं, God is saying, अरे बाबा जैसे मैं मोसेस के साथ था, how I was मैं with तुम्हारे Moses, साथ भी रहूंगा। I will be with you. तो अभी जोशुआ को हिम्मत आया होगा, So now what happened? हाँ मैंने खुद मोसेस के साथ था, That Jesus, तो मुझे तो पता ही है I saw Jesus was with कि Moses. परमेश्वर कितने अच्छे से मोसेस को चलाते थे। That how wonderfully तो God अभी led उनको Moses. एक और एक अच्छा लगा रहेगा कि यस। Then you would have thought yes. नेक्स्ट लाइन बोल रहा है कि आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉरसेक यू। मैं आपको छोड़ूंगा भी नहीं और आपको त्यागूंगा भी नहीं. परमेश्वर एक प्रॉमिस भी देते हैं, He is giving a promise. आई विल नेवर लीव यू। मैं आपको छोड़ूंगा सी नहीं. लीविंग इज अ शॉर्ट टर्म, छोड़ना एक शॉर्ट टर्म. फॉरसेक यू forsake you. एकदम दूर करना, माइंड से, मन से, सब कुछ। अपने दिल मन से दूर कर. दोनों में एक डिफरेंस है। That is the difference between both. सी व्हेन यू लीव द ऑफिस फॉर टुडे, जब आप ऑफिस छोड़ यू के कम बैक अगेन टुमारो, आप कल वापस आओगे. बट द मोमेंट व्हेन यू से forsaking means जब आप बोल रहे हो you त्याग are रहे leaving that job and going. हो, मतलब आपको जॉब. हालेलुया। ये सिर्फ आपको समझने के लिए उदाहरण दिया है। जस्ट एन एग्जाम्पल. So leaving is just a short term, you will come back. छोड़ना मतलब कम समय के लिए Forsaking वापस, is और त्यागना मतलब living it हमेशा forever, हमेशा के लिए छोड़ के for जाना. a long term. लंबा समय के लिए. लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं, What the God says, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा I will और not कभी ना त्यागूंगा। Hallelujah. What a wonderful promise Jesus has given to Joshua. ये कैसा वाचा परमेश्वर ने जोशुआ को दिया. So no matter what you are going through, no matter what something new task you have got in your life, no matter whether it's a new relationship, whether it's a new job or anything new, कोई भी चीज आपके हाथ में हो, या Like the Lord is telling you. रिलेशनशिप हो या जॉब don't हो, get scared. परमेश्वर कह रहा No है one will be able to stand against you. कोई आपके विरोध नहीं खड़ा रह सकता. As I was with your ancestors, जैसे मैं मोसेस के I साथ will also be with you. मैं आपके साथ भी रहूंगा. And I will never, और मैं आपको बोलेंगे, वचन को जितना बोलेंगे उतना क्रिया करेगा. I will When you never speak the word of leave you God, it works for you. nor forsake you. Hallelujah. Hallelujah. I will never leave you. मैं आपको छोड़ूंगा नहीं. जब शादी होता है, When couples get married, चर्च में प्रॉमिस तो देते हैं ना, there is a promise in the church कभी नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे का साथ कभी नहीं that छोड़ेंगे. they will not leave each other. इसके लिए हमने पहला वचन में पढ़े कि अपना जो परमेश्वर है वो, That's why we read in the first word. our Because God he's is a- God. He's a faithful God, Because He's a faithful a never changing God. and never changing. लेकिन हम मनुष्य And we people, प्रॉमिस तो करते हैं, we promise लेकिन कुछ ना कुछ सिचुएशंस with some हम situation बदल जाते हैं. we keep changing. But here the verse says, But the word of God I will says, never leave you, मैं नहीं छोड़ूंगा. no matter what. कुछ भी हो, Anything may happen, कुछ भी हो, whatever you are, जो भी आप whatever you do, आप कुछ भी करते हो, but I will never leave you. मैं नहीं छोड़ूंगा. However far you may go, कितना भी दूर आप I चले will जाओ, never leave you. मैं आपको नहीं छोड़ूंगा. Hallelujah. Hallelujah. No matter what. कुछ भी हो. So, our Lord is a God who is not going to change. अपना जो परमेश्वर है वैसा परमेश्वर His जो नहीं love for बदलेगा. you is not going to change. उनका जो प्यार है वो नहीं बदलेगा. ऐसा नहीं कि आज 1 किलो है तो कल 900 ग्राम हो जाएगा, ऐसा नहीं है. It's not that if today is 1 kg, tomorrow It's it will be always going 900 to be grams. the same. It's going, ये हमेशा same. Hallelujah. क्यों वो हमेशा सेम रहेगा बताइए? क्यों हमेशा? Why it is always the same, Chen? Because he's a God. क्योंकि वो परमेश्वर बोलेंगे he is a God.
human being. वो मनुष्य नहीं है. और एक चीज है, One more thing, so we'll be in the same verse. I'll just tell you all. वही वचन में In the books of 2 Timothy 2:13, 2 तिमोथी में 1 Timothy 2:13 में, if we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself. let's read in the book of 2 Timothy chapter 2 verses 13. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself. Hallelujah. यदि हम अविश्वासी भी हो तभी वो विश्वासियों को बना रहता है, क्योंकि वो अपना इनकार नहीं कर सकता. हालेलुया. हम अविश्वासी भी बन गए. Even if we are faithless people, देखो, आज आप विश्वासी हैं, today you are a आप faithful ही नहीं, person. Yes or no? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते Do हैं. you believe God or not? आज परमेश्वर ने आपके साथ एक वाचा बना है. Today God makes a Hallelujah. promise with you. कल आप अविश्वास बन गए, If you turn out to be faithless, आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है, if you are not believing God, लेकिन फिर भी still, वो कैसे रहेंगे? परमेश्वर how कैसे is रहेंगे? He? How is He? वो हमेशा कैसे रहेंगे? How is He? विश्वास योग्य. He is always a faithful God. इसलिए वचन कहता है कि he will never leave you, That's why word says He will never no leave you. matter what. कुछ भी हो. आप अविश्वास भी बन गए, Even if you are turning या out to be मुड़ भी गए, faithless, even if you या turn दूर from भी God, चले or गए, if you are far या from उनको God, छोड़ भी दिए, and if you leave Him, फिर भी वो कैसे है? how He is, विश्वास योग्य परमेश्वर. He is a faithful God. हालेलुया. Hallelujah. So don't, make your heart very soft. Don't keep it like a stone. आपका जो दिल है उसको पत्थर जैसा मत करना. ऐसे मत सोचो कि मैं बहुत दूर चली गई हूँ या मैं बहुत दूर चला गया हूँ. Do not think that I am so far from God. Because the verse says, ये वचन कहता even है if you are faithless, क्योंकि आप अविश्वास he remains faithful. वो फिर भी विश्वास योग्य परमेश्वर है. हमने शास्त्र में एक स्टोरी पढ़े हैं. In the Bible there is a story. एक पिताजी को 2 पुत्र रहते हैं. Father has 2 sons. Prodigal son, what does he do? One son leaves the father's house एक पुत्र पिता को छोड़ के जाता है and he goes away. और दूर चला जाता है. And when he comes back again, और जब वो वापस आता है the father पिता जो है accepts him अपना लेता with है the same love. वैसे ही प्यार. Hallelujah. Hallelujah. Here also the verse says, यहाँ पर भी वचन कहता है even if we are faithless, हम अविश्वास होंगे तो भी he will always remain. वो हमेशा He will विश्वास always remain. वो हमेशा विश्वास faithful. योग्य रहे. हम अविश्वासी भी बन जाएंगे, Even if we are हम faithless, कुछ भी करेंगे, whatever we कितना भी कुछ होने दो, whatever लेकिन फिर भी still आपको जो वाचा दिया, आपको जो वचन दिया, आपको जो प्रॉमिस दिया, the promise what you have received, वो परमेश्वर oh, that God, विश्वास योग्य He परमेश्वर. is a faithful God. हालेलुया. Hallelujah. और उन्होंने जो बोले अपने मुंह से, And the word what He has released वो from His उसको mouth, कभी इनकार नहीं कर सकते. He will not refuse that. हम क्या करते हैं? What do we do? आज हमने कुछ बोले, Do we say something? कल किसी ने कुछ बोले, पूछे, Someone asks tomorrow, हम बोलेंगे we नहीं say, नहीं, मैंने तो ये बोला ही नहीं. you would deny it. हाँ कि नहीं? Yes or no? यस और नो? कई बार हुआ है ना, We have done this, right? हम जो बोले, We say something, अपने मुंह से जो वचन निकला, अपने मुंह से जो शब्द निकला, the words released from our mouth. हम उसी को The same कुछ समय word, के बाद after some time, इनकार कर we देते refuse it. कि नहीं नहीं. That, क्यों इनकार करते why हैं? do we refuse? कई समय पर बचने के लिए हम इनकार करते हैं. Sometimes to save ourselves, आपको सिर्फ बचने का वो सिचुएशन we से, just want to save your तो हम own बोलते self. हैं And we कि नहीं say, नहीं, मैंने ऐसे नहीं बोला था, मैंने वैसे बोला था. no, no, I didn't say this, I said Experience that. किया आप लोगों की Have you life में? experienced? यस और नो? Yes or no? और कभी भूल भी जाते हैं. Sometimes we लेकिन forget. कभी जानबूझ के भी हम बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं. Sometimes we do this intentionally. लेकिन यहाँ पर परमेश्वर But God, जो चीज बोले what He वो says, करेंगे, He does that. क्योंकि वचन ये कहता है Because the word of God says, he cannot deny himself. कि वो खुद को इनकार नहीं कर सकता. उन्होंने जो भी वचन अपने मुंह से बोले हैं, Whatever word has come out वो from अपने His mouth, वचन को and His कभी word, ये नहीं बोलेंगे He will never कि say, मैंने नहीं बोला I है, have not told that. या फिर ये नहीं बोलेंगे Or He will not say, टर्म्स एंड कंडीशंस आर अटैच्ड. there are some terms and conditions. ये नहीं बोलेंगे कि उस दिन तो तुमने मुझसे प्यार किया था,
He will not say तो that. इसलिए मैंने वाचा बनाया था, That's why I made लेकिन आज तो तुम दूर चले गए, Today I'm far off. तो इसलिए मैं भी मेरा प्रॉमिस को वापस ले लेता That's why हूँ। I'm taking my ऐसा बोलते हैं क्या परमेश्वर? Does God say that? तो नो टर्म्स एंड कंडीशंस, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच नहीं है। Conditions. हालेलुया। Hallelujah. जो स्थिति में जो भी जैसे भी आप थे, जैसे आपके साथ वाचा बनाए, कल आप कैसे भी उल्टा भी बन गए, Tomorrow, if you change yourself, coming out of that promise, तो भी उन्होंने जो आपको प्रॉमिस दिया है वो प्रॉमिस को वो पूरा करेंगे। the promise what He had given, Hallelujah. He will fulfill it. हालेलुया। Hallelujah. Read the next verse, 6th verse. Let's read the next word. Joshua chapter 1, verses 6. Let's read. इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ लागने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। Joshua 1:6. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. हिंदी में पढ़ेंगे. इसलिए हिया बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के दिनों में शपथ में मैंने उन लोगों को पूर्वजों से खोई थी, उसका अधिकार तू उन्हें करेगा। Hallelujah. Hallelujah. So the Lord has given a new task to Joshua एक नया काम योशुआ को मिला है. कि आप भी इन लोगों को कानान देश के अंदर लेकर जाने वाले हैं। You have to take these people into the Canaan land. जब परमेश्वर ने ये वचन जोशुआ को दिए, When God gave this word to Joshua, तो जैसे आप सबको पता है कि जोशुआ को थोड़ा डर लगा होगा you all know Joshua would have been कि afraid. मैं कैसे करने वाला हूँ, How would I do this? लेकिन परमेश्वर यहाँ पर बोलते हैं But God says, कि बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। कैसे रहना हमको? how we have to be? एकदम हिम्मत के साथ रहना है। We have to be courageous. नया है बोल के डरना नहीं है। You don't have to fear तो because आज आप it's मुंबई new. में है, If you are today, गुजरात जाएंगे, tomorrow you are going to आपको Gujarat. डरना नहीं है। You don't have to fear. परमेश्वर यही बोलते हैं, God says this. बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस हिम्मत से रहो, बिकॉज क्योंकि यू विल लीड दीज पीपल, ये जो लोग हैं, क्योंकि तुम ही इन लोगों को ये you will lead these कहाँ पर people. लेकर जाने वाले Where हो? would you take them? कानान देश के अंदर लेकर जाने Take वाले them हो। into the Canaan land. जो मैंने What I तुम्हारे एंसेस्टर्स what I have दादा, sworn to जो their भी है, ancestors. What I उनको have ऑलरेडी मैंने प्रॉमिस दिया है। I've already promised आपको them. पता है ये प्रॉमिस कभी से कितने साल से चल रहा है, कितना पीढ़ी से चल रहा है, आपको पता ही है। You know since how many years? वहाँ पर this लिखा है promise? ना, लास्ट लाइन क्या बोला है? What says? पूर्वजों से शपथ खाई। Yes, these people to inherit the land which I swore to their ancestors to give them. So these promises been for years. तो ये प्रॉमिस ना मूसा को दे के जोशुआ के पास आया नहीं है। It's not only about Moses to Joshua. ये जो प्रॉमिस है This promise उत्पत्ति के पुस्तक से शुरू हो गया है। from book of Genesis. पहला यही प्रॉमिस This promise कि मैं तुम्हें ये देश दूंगा, that I will give you this land. परमेश्वर ने ये प्रॉमिस That this promise. पहला अब्राहम को किए थे। किसको किए थे? First he gave to Abraham. अब्राहम को किए थे। सेम प्रॉमिस Same promise. अब्राहम के बाद किसको आया? आइसैक को आया। It came to Isaac. आइसैक के बाद वही प्रॉमिस Same promise किसको आया? came to जेकब को आया। came to Jacob. उसके बाद वही प्रॉमिस Same promise. अभी किसको आया है? It has come to मूसा को आया। It came to Moses. वही प्रॉमिस मूसा से अभी किसको आया है? Moses is got transferred. जोशुआ को आया है। एक्चुअली आप देखेंगे तो 8 जनरेशंस, कितना जनरेशन? It's almost 8 generations. 8 जनरेशंस, 8 पीढ़ी। 8 पीढ़ी तक हम जान रहे हैं कि परमेश्वर का जो प्रॉमिस है वो अभी जोशुआ के पास वो आके फुलफिल होने वाला है। We are seeing for the 8 generations Hallelujah. that is coming to Joshua. इन बिटवीन कितना सारा चीज हुआ, Many things happened. आगे नहीं। Yes, sir. जब मिस्र देशी से लोगों को लेकर आए थे, When the people were brought out of that foreign land, लोग परमेश्वर की आराधना करते, the people were फिर worshipping बीच में मुड़ जाते थे, कुछ और करते, मूर्ति पूजा, and they were फिर से worshipping परमेश्वर की आराधना, and फिर से again मूर्ति पूजा। again idol मतलब worship. कितने बार लोगों ने अपना मन एकदम
परमेश्वर से दूर चले गए थे, How many times people have turned their back? लेकिन परमेश्वर ने ये जो वचन है, ये जो प्रॉमिस है अब्राहम को दिए थे, But the promise which was given to Abraham, और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है the word of God, कि 1000 पीढ़ी तक for next 1000 वो generations, वाचा को मैं बना कर रखूंगा I will keep that और उसको मैं फुलफिल करूंगा। and I will fulfill. वैसे वो प्रॉमिस The same way, अब्राहम से अभी कहाँ पर आके वो फुलफिल हो रहा है? from Abraham it came to कम ऑन माय चर्च, Joshua. कहाँ पर आके? Joshua. जोशुआ के पास। हालेलुया। Hallelujah. तो आपको लगेगा कि मुझे प्रॉमिस तो मिल गया, You would be thinking I received the लेकिन promise. फुलफिल क्यों नहीं हो रहा है? Why isn't it being देयर fulfilled? मस्ट बी समथिंग। कुछ तो रहेगा। देखो, जस्ट बिकॉज इट्स गेटिंग डिलेड, वो डिले हो रहा है इसका मतलब, इट्स नॉट डिनाइड, इसका ये मतलब नहीं कि वो परमेश्वर ने इनकार कर दिया, बट द वर्क इज इन प्रोग्रेस। क्योंकि आपका जो काम है वो Hallelujah. चालू है। देरी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि वो इनकार हो गया, Just because it's delayed, that doesn't mean it's denied. लेकिन आपका काम चालू है। Your work is ongoing. यू ट्रस्ट हिज वर्ड्स? आप उनका वचन Yes or no? करते हो। तो आपको कुछ वचन मिला है, If you have received a promise, द लॉर्ड इज वर्किंग फॉर यू। परमेश्वर काम और कर, जैसा परमेश्वर ने आपको वचन दिए हैं, and the way God has आपका ये given वचन this पूरा word, होगा। हालेलुया। Hallelujah. कुछ भी होने दो, No matter what, आपको लगेगा कि मुझे ही जब ये वचन मिला था, when I received this मैं word, एकदम चर्च में मेन मेंबर था, I was a main member of the एकदम church. आगे खड़े रहती थी, I was मैं आराधना को हर संडे जाती थी। I was लेकिन आज going, मैं बहुत दूर चला गया हूँ। now I'm very far. डजंट माइंड, कोई बात नहीं। क्योंकि आपको जो प्रॉमिस दी है ना, When you are given the promise, दैट गॉड इज अ परमेश्वर विश्वास आपको जो बोले कि मैं करूँगा, when he says वो that करेंगे करेंगे। he will, देखो, ये एक पिता और एक बच्चे का एक रिलेशन है। this is like a relationship between a father and children. अभी एक पिता ने बोला है When the father कि मेरा says, जो भी जायदाद है, whatever my promise मेरा is, एक ही बेटे के लिए है। it's for my son. चला दे विद मी। Yes. फिर बीच में बच्चा And in between, पिता से बहुत दूर चला गया, went far off. लेकिन फिर भी Still, पिता बोलेंगे father ये says, किसके लिए है? it's for whom? मेरे बेटे के लिए ही है। It's for my हालेलुया। son. Hallelujah. कुछ भी होने दो। No matter what. So today, आज whatever may happen, few, just trust on His words. हम से विश्वास, Whatever promises you have received, कोई भी आपको आशा मिला हो, you must be feeling, आपको why लगेगा is it not getting fulfilled in my life? नहीं हो रहा है। How long? कितने How long? और कितना टाइम? But in the right time. सही समय। हालेलुया। आपको लगेगा कि देरी हो गया है, You might be thinking it's लेकिन वो delayed. देरी नहीं हो रहा है, It's not वो delayed. सही समय पर होगा। It will happen. Hallelujah. Hallelujah. Though the promise was given to Abraham and it came to Joshua, अब्राहम को दिया हुआ वाचा but this जोशुआ was the को- right time. ये सही समय। Hallelujah. Hallelujah. Let us go to the next verse. हम नेक्स्ट वचन में जाएंगे। Joshua जोशुआ में 21, 21, 44. जोशुआ चैप्टर 21 वर्सेस 44। 21, 44. और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक ना सका। यहोवा ने उन सबों को उनके बस में कर दिया। Hallelujah. Let's read. The Lord gave them rest on every side, just as He said, as He had sworn to their ancestors. Not one of their enemies withstood them. The Lord gave all their enemies into their hands. Hallelujah. Hallelujah. देखो, हमने ऑलरेडी जैसे बोला है कि पूरा शास्त्र में आप बहुत सारा प्रोमिसेस को देख सकते हैं, We can see a lot of promises in लेकिन this आज scripture. हमारा उदाहरण है जोशुआ। But today's example is only तो Joshua. हमने ऑलरेडी 1 में 5वां वचन यही पढ़े थे We have already read कि this. परमेश्वर ने जोशुआ को That God यही वचन दिए थे has given this कि कोई word भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं खड़े रह that सकते, nobody can stand और against आज का दिन के लिए नहीं, And not अपना only पूरा today, जिंदगी के for लिए। your entire life. और ये वचन में And this 21 में 44 में in यही 44, कहता है it says, कि the Lord gave them rest on every side. परमेश्वर हालेलुया। जगह से परमेश्वर ने बोले The
The word कि तुम्हारे विरुद्ध कोई नहीं खड़े रह सकता। nobody will stand for और you. यहाँ पर वर्स 21-44 में यही कहता है And the same thing is कि said परमेश्वर ने जो जोशुआ को बोले what you वैसे ही चारों तरफ से From कोई भी all उनके sides. विरुद्ध नहीं थे। Nobody will stand. हालेलुया। Hallelujah. The promise is fulfilled here। ये जो परमेश्वर बादशाह ने है जो पूरा बोले, जो परमेश्वर ने बोला वो किए, that happened. क्योंकि वो कौन सा परमेश्वर है? Because what type of God we विश्वास serve? योग्य परमेश्वर। He is a faithful God. वो कभी अपने आप को इनकार He नहीं will not करेंगे। disown himself. वो कभी जो बोला हुआ बात को वापस He will नहीं not लेंगे। take back his word. आपको दे दिया, If he has वो given, आपका है अभी, it's yours. और वो कभी ना कभी पूरा होगा। And he will आपको बस उसके ऊपर भरोसा करना है। if you just And if have you trust trust. it, और you're उनके going to ऊपर receive it. विश्वास Hallelujah. जरूर पाएंगे. So यहाँ पर वचन बोलता है कि the Lord gave him rest in all the sides. The word says that God gave him rest from all तो इसका sides. मतलब कोई शत्रु है ही नहीं। That means there's no और enemies. जो भी उन्होंने अपने पूर्वजों को जो भी बोले हैं, And whatever has been told to the वो ancestors, सब चीज हुआ यहाँ पर, that all got fulfilled. और सारे एनिमीज चले गए। And all the enemies No left. one is there now. कोई नहीं है. तो प्रॉमिस भी हुआ कि नहीं? Whether the promise Yes is or no? fulfilled or not. Today the Lord is telling you, The Lord whatever is the hindrance, कोई भी whatever is the problem in your कोई life, भी problem, आपके सामने जो भी whatever समस्या है, whatever problem you are, आपको लगता है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, you might be thinking it is a big लेकिन problem. हमारे परमेश्वर के लिए वो बहुत छोटा है। For our God, it is a small thing. We are human beings, हम मनुष्य है, but He is God. वो परमेश्वर है. Hallelujah. Hallelujah. तो जो बोले Whatever He करेंगे। spoke, He will fulfill. आपका कुछ भी प्रॉब्लम है, आपका सोल्यूशन कौन है? Whatever problem you have, you is the Jesus. solution. बोलेंगे मुंह खोल के, Let's open कुछ our भी mouth. समस्या है, Whatever problem you have, आपका हल कौन है? जीसस। let's वो open our कुछ mouth. भी होने दो, No matter what, कोई भी प्रॉब्लम। whatever problem. तो नया टास्क दे दिए, If there's a new तो आप task, सोचेंगे you नया जॉब है, बॉस कैसे रहेगा? it's a new Job job. profile How the कैसे रहेगा? boss would be? नया रिलेशन है, It's a new हाउ relation. इज इट गोइंग टू गो? कैसे जाने वाला है? कोई भी चीज। कोई भी चीज. लेकिन आज परमेश्वर आपको बोल रहे हैं, God is saying to you क्या today. बोल रहे हैं आपको? What is He saying? जो प्रॉमिस दिए थे उन्होंने फुलफिल कर दिए। Whatever You promise just He have gave, to believe and accept it आपको today. सिर्फ विश्वास करके accept There are no करना. enemies. मेरे लिए कोई विरोध नहीं. All the sides. God has freed me today. परमेश्वर ने मुझे आजादी दी. Hallelujah. और 45 वर्स कहता है, And for verse 45. not one of all the God's good promises to Israel failed. Every one was fulfilled. जो भी परमेश्वर ने वाचा किया, सब कुछ पूरा तो हुआ. परमेश्वर ने इज़राइल लोग को जो भी प्रॉमिसेस किए थे, इतने सालों में जो भी प्रॉमिसेस करते आए थे, Whatever promises God, सारा प्रॉमिसेस फुलफिल हुआ। सब कुछ पूरा. सारा प्रॉमिसेस, सब कुछ पूरा. जो भी प्रॉमिस उन्होंने अब्राहम को किए, जो भी प्रॉमिस उन्होंने आइसैक को किए, जो भी प्रॉमिस उन्होंने जेकब को किए, जो भी उन्होंने मूसा को किए, जो भी उन्होंने जोशुआ को किए, सारा का सारा प्रॉमिसेस क्या हुआ? All the promises सारा from promises Abraham to fulfilled Joshua हुआ. got fulfilled. Everyone. Look at that word, everyone. वो वचन कहता है कि सब कुछ. अगर 1000 promises थे, If there were 1,000 promises, तो भी 999 promise fulfill नहीं हुआ। it's not talking about कितना 99. promises fulfill हुआ? How many promises? पूरा 1000 के 1000 promises fulfill हुए। Full 1,000 That promises is got what the Bible was. Each and every word is a living word. जो बाइबल का वचन है They are not just any normal word that you are reading in any books. वो ऐसे नॉर्मल वचन नहीं है कि कोई बुक में आप Each and every word is a living word. वो एक जीवित वचन. And the more you say, you are going to believe, you are going to receive it. जितना आप विश्वास करोगे उतना आप पाओगे. So the Lord is telling you today, परमेश्वर so कहता throughout है in your life, आपका I जिंदगी made a में lot of promises. बहुत सारा वाचा किया. All the promises will be fulfilled. सारे वाचा पूरा होगा. आपको शायद promises याद नहीं रहेगा। You might not recollect. 10 साल पहले आपको क्या वचन मिला था, न्यू ईयर में बोलेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। You might forget your promise. लेकिन परमेश्वर को याद है, But God remembers. क्योंकि उन्होंने जो बोले हैं Because what He has वो said, अपने आप को कभी इनकार He will not नहीं deny. कर सकते। He will not deny. जो बोले हैं, What He has told. और एक प्रॉमिस, everyone was fulfilled. सब कुछ पूरा होगा. विश्वास करते हैं? Yes. विश्वास करेंगे तो करने वाले प्लीज तालियां बजाकर। So today, आज who is the solution to all your problems? कौन है? Who is the solution? कौन है आपको कुछ सहायता करने प्रॉब्लम होते ही सीधा फ्रेंड को फोन नहीं करना। वाला? If
If you have a problem, do not call your friend first. कुछ समस्या हो तो डायरेक्टली हस्बैंड को कॉल, वाइफ को कॉल, फ्रेंड को कॉल, मम्मी को कॉल, डैडी को कॉल, ब्रदर को कॉल, सिस्टर को कॉल नहीं करना है. If you are confronted with a problem, don't call any of your own people. Your first trust is on Jesus. पहला किसको बुलाना है? Hallelujah. यीशु को. आपका हर सवाल का वही जवाब है. The questions what you have, the answer is Whatever is your question. whatever question you have. Do you believe that He will give you the answer? आप विश्वास करते हो Yes क्या or वो no? आंसर देंगे? बाकी किसी को भी आप कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे ना तो आंसर नहीं मिलेगा. If you ask someone any question, they will not अभी answer. आप मुझे पूछेंगे If you ask me, लास्ट वीक क्यों नहीं आए थे? why you did शायद that? मेरे पास जवाब नहीं है. I do not have an answer. लेकिन परमेश्वर के पास If you आपने कुछ पूछे if you ask a question to तो God, आंसर मिलेगा. He will answer you. आपका प्रॉब्लम है, If you have a problem, आप बोलेंगे, if you say, आपको सोल्यूशन मिलेगा. you will receive a आपको solution. दर्द है, If you have a pain, इलाज बनकर आएंगे. He will be the solution to You that want pain. whatever जो भी आपको He चाहिए, will give you. वो परमेश्वर दे दे. Because He is the provider. वही आपको सब He देने वाला will not परमेश्वर. only provide one certain thing. वो सिर्फ देने वाला परमेश्वर नहीं है. अभी कोई स्टोर में जाएंगे, जनरल स्टोर में, उधर जो मिलेगा वही चीज मिलेगा. अगर आपको if you go to आगे a नहीं. general store, you would receive only one thing what you have ग्रोसरी शॉप ordered. में जाएंगे, If you go to grocery, उधर जो चीज मिलेगा वही मिलेगा. you would receive only the grocery. वेजिटेबल मार्केट जाएंगे, When you go to the वेजिटेबल्स ही मिलेंगे. then you would receive the vegetable. यहाँ पर परमेश्वर यीशु में से ऐसे नहीं है. Your God is not like that. आपको जो चीज चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे. Whatever you want, He will provide. Whatever it is, जो भी चीज, everything under one roof. सब कुछ एक Hallelujah. में मिलेगा. Do you believe this? आप विश्वास करते हो क्या? So whatever, ask Jesus, He will give you. जो भी है आप यीशु से अरे पूछिए. देने में हम कंजूसी करते हैं, लेकिन पूछने में क्या है? Ask whatever. You don't have to be He will give stingy you. when you're asking. You can ask with your whole heart. Hallelujah. Hallelujah. आपके पास गाना है ना? We have the कितना song. पेपर है? आपका सारा समस्या का हल कौन है? Who is the Come on, solution open to your mouth. Come on, church. all your problems? जीसस. आपका हर सवाल का जवाब कौन है? आपका क्वेश्चन का आंसर कौन है? जीसस. आपका हर प्रॉब्लम का सलूशन कौन है? Who is solution to all your Jesus. problems? आपका हर जरूरतें All कौन the पूरा needs. करेंगे? Who will fulfill? जीसस. Yeshu. आपको प्यार चाहिए? If you कौन need love, देंगे? who would give? जीसस. Jesus. हालेलुया. Hallelujah. एकदम जोर से गीत गाएंगे. We will sing worship the song. रेडी? Ready? नहीं भी आता है ट्यून, एक लाइन के बाद आप लोग साथ में गाएंगे. Even if you do not know, you can sing together. Try and understand. हर सवाल का जवाब दो, हर दर्द का इलाज दो, हर उम्मीद का आशा दो, अंधेरे में उजाला दो. बोलेंगे हर सवाल का जवाब दो, हर दर्द का इलाज दो, हर उम्मीद का आशा दो, अंधेरे में उजाला दो. कौन है? तू ही तू, तू ही तू, यीशु तू ही तू. कौन है आपका? तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू. कौन है? आपकी समस्या का हल कौन है? who is solution to your problem? तो आपका हर सवाल का जवाब कौन है? आपका हर दर्द का इलाज कौन है? Jesus. आपका हर उम्मीद का आशा कौन है? Jesus. Walking in the darkness, अब अंधकार में who चल is the रहे light there? कौन है रोशनी? Jesus. You are in यीशु. pain, अगर आप दर्द में हैं, He is the healer. वो चंगाई करने वाला Hallelujah. परमेश्वर है. हर समय, हर घड़ी, साथ न छोड़े वो कभी. बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुम्हें आजादी. बोलेंगे हर समय, हर घड़ी, साथ न छोड़े वो कभी. बात छोटी हो या बड़ी, देगा यीशु तुम्हें आजादी. तू ही तू, Action. यीशु तू ही तू. कौन है? तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू. हर सवाल
जो भी आपका You don't जरूरत need anything. आपको कुछ नहीं चाहिए। You don't need a debit card. आपको डेबिट कार्ड की You need a जरूरत credit card. क्रेडिट कार्ड की You जरूरत don't need a bank balance. बैंक बैलेंस की You don't जरूरत need any relation. कोई संबंध का Only Jesus is enough. सिर्फ यीशु Do you का trust this? आप विश्वास करते हो क्या? Because whatever I said, जो भी मैंने they're बोला all man-made. ये सब मनुष्य But our God और अपना is परमेश्वर God. वो And परमेश्वर what is the characteristics of a God? और परमेश्वर का He's a गुण क्या? faithful God. वो विश्वास योग्य परमेश्वर He's है। not going to take वो whatever He has promised. वो जो भी वाचा किया वो Hallelujah. वापस ले लेगा। So today, आज कौन सा परमेश्वर है? what about God विश्वास योग्य परमेश्वर is है. a faithful God? हालेलुया. Hallelujah. हम आखिरी वचन पढ़ेंगे आज के लिए. Let's read the last word. I'll just say the verse. The one who has called you जो परमेश्वर ने is तुम्हें बुलाया faithful वो विश्वास and He योग्य will do it. और वो पूरा हालेलुया. करेगा। Hallelujah. बोलेंगे. आपको जो बुलाए वो परमेश्वर, The God who has called वो you, विश्वास योग्य है वो विश्वास और वो करेंगे. He is a faithful वापस God and He बोलेंगे. will fulfill it. जो बुलाए हुए परमेश्वर The one who has कौन called सा परमेश्वर है? what type of God? विश्वास योग्य He is a परमेश्वर faithful God और वो करेंगे. and He will fulfill it. जो परमेश्वर आपको बुलाए, आपके हाथ में कुछ दिए, आपको कुछ टास्क दिए या आपको कुछ नया मार्ग दिए, वो ही करेंगे. Whatever God has promised आपको you, नहीं करना है. you don't have to do anything. आपको लगता है कि आज आप यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ में हैं, Do you think that you are No. by your own strength here today? आपके एजुकेशन की वजह से है? Because of your No. education here? आपने जो कोर्स किया उसकी वजह से है? Because of your No. course you are here? No. क्योंकि उन्होंने आपको बुलाए हैं Because He has called और you वो करेंगे. and He will fulfill it. Hallelujah. Hallelujah. He has started painting your story वो आपका and story He लिखेगा will finish it. और वो ही Hallelujah. Hallelujah. Written at the end, अंत में लिखा है कौन है उसका ऑथर? Who is the author of कौन the है story? आर्टिस्ट? Jesus. Just imagine your story painted, सोच कर देखो आपका कहानी, your name, आपका जो नाम है, whoever it is, Asha, Usha, Prema, whatever, या रूपा, whatever, whatever name आपका you are. स्टोरी पेंट हुआ है The story is being and it's painted very beautiful. and it's so beautiful. But starting में it was only a pencil sketch, पहले एक but now it is very colorful अभी बहुत colourful with all sorts of outlining given, सब outline with all किया। beautiful colors, सब अच्छा with all अच्छा color combinations, and at the end it is written, the artist is Jesus. और Hallelujah. And He called you, He started, and be sure He is going to finish it. Hallelujah. 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 So today we are going to receive this blessing that He is a faithful God. He has called you and He will do it. आज अपनी वाचा ने की Hallelujah. बुलाया और वो पूरा करेंगे. आप जैसे काली रात आए वैसे नहीं जा रहे आज. The way you entered, you would not आप प्रश्न के साथ आए आप वैसे ही नहीं जा रहे. The question you came, you would not leave it the आप same. टूटे हुए आए वैसे ही नहीं जा The रहे. brokenness you have entered, you will not. कि परमेश्वर ने बोले और वो करेंगे. Because God has promised and He will fulfill. विश्वास करते हैं आप लोग? Believe. Come on. My dear brothers and sisters, if you ये close भाई your eyes. बहनों आंखें बंद करो. परमेश्वर यीशु मसीह ने जोशुआ को प्रॉमिस की है. Whatever God promised Joshua, परमेश्वर यीशु मसीह ने वही प्रॉमिस को फुलफिल भी किए. He fulfilled that promise. उसके बदले में जोशुआ ने लोगों को बोले And Joshua told the कि people, तुमको जो करना है वो करो, what you want to do, you do. तुमको जो परमेश्वर को आराधना करना है वो करो, You worship the God what you want. लेकिन मैं But I, और मेरे घराना my house, हमेशा के लिए we will परमेश्वर की आराधना करें. serve the Lord. हालेलुया. Hallelujah. मैं मेरा घर और मेरा घराना यहोवा की स्तुति करे. मैं मेरा घर और मेरा घराना यहोवा की स्तुति. Come on, church, today you also have to say that me and my household, we are going to serve you, Lord. हम बोलना है कि मैं मेरा घराना परमेश्वर का स्तुति करूं. This is the time for us to give back something to the faithful ये God. वही समय है जब हम परमेश्वर को बोल सकते हैं जो विश्वास योग्य है. He called you, He has did it. वो बुलाया और उन्होंने फुलफिल किया. He has called you and He will do it. वो बुलाया और वो पूरा करेगा. What are we going to do for Him? हम क्या करने वाले हैं?
So it is a high time that we give something back to the Lord. ये वही समय है जब हम परमेश्वर को कुछ दे सकते जैसा परमेश्वर ने जोशुआ को एक प्रॉमिस दी है और उसको निभाए, आज परमेश्वर कलीसिया के सभी लोग जो भी एक उम्मीद के साथ, जो आशा के साथ, जो भी सोच के साथ, जो विचार के साथ, जो समस्या के साथ आप आए हैं, हैं. Whatever problems which you have entered here today, आज भी परमेश्वर आपको बोल रहे हैं, God is saying, हिम्मत रखो, be courageous. आपकी सारी समस्या हट जाएगी। All your problems will be और जैसे resolved. मैंने मूसा के साथ था वैसे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। How I was with Moses, so I will be with you. मैंने तुमको बुलाया है तो मैं करूंगा। I have called you, I will fulfill. तो आज जो भी आपकी समस्या है Whatever problem, सब बदलने वाला है। everything is going to change. जो भी आपका सिचुएशन है Whatever problem, सब बदलने वाला है। everything will change. Whatever it is, जो भी है, वो कितना भी बड़ा समस्या no हो, matter how big, वो कितना भी आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो, no matter how लेकिन हर complicated, चीज का आज आपको जवाब मिलने वाला you है। are going to receive the answer. हालेलुया। Hallelujah. विश्वास कीजिए परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्रिया करने वाले हैं। Believe that God is going to work in your life. आपकी पूरा जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाले हैं। He is going to change your life. आपकी पूरा जिंदगी को परमेश्वर आपको ना एक रखकर एक बड़ा सा काम करने वाले To हैं। you, God is going to do a big thing. जैसे जोशुआ को रखकर इस्राएल के लोगों को कानान देश में लेके How गए God थे, used Joshua to bring the वैसे Israelites out परमेश्वर of it. आपको रखकर Same way God बड़ा सा काम करने will वाले do a हैं। big thing through you. और वो बड़ा सा काम And that big सिर्फ thing, आपके लिए नहीं, It's not लेकिन only एक for बड़ा you. सा झुंड के साथ। it's for my हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. धन्यवाद पिता परमेश्वर, Thank you, इस Lord. समय के लिए हम आपको धन्यवाद We कहते thank you हैं। for this time. आपने हमसे बातें की है, You spoke with आप us. हमारे साथ पूरी तरीके से हम हमारे साथ थे। You were with us together. आपने हमें चलाए, You had led us. आपने हमें वाचा दिया And है you have promised और आप us. विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। And you are a faithful आज भी God. हमें गर्व होता है कि We also take pride in उस that. विश्वास योग्य परमेश्वर की We are हम worshipping आराधना करते हैं। such a faithful God. हालेलुया। Hallelujah. इस प्रार्थना को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं। All these prayers we give in the हमारे name of जीवित Jesus. अच्छे पिता। Hallelujah. All church, come on. Amen. Amen.